और आपको लेकर चल रहे हैं सीधे संसद, जहां पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कुछ बोल रहे हैं संसद परिसर में। सुनाते हैं। आज पारित किया है, ये मैं सूचना आपको देना था। कुछ सर नाम पर भी चर्चा हुई है, वो ऑथोराइज किया है। अब जैसे निर्णय करेगा, फिर उसके बाद 9 तारीख को चुनाव होगा, तो हम लोग सब कब तक सर फैसला कर लेंगे सर? नहीं, फैसला आज तो अधिकृत रूप से वही कब तक कर लेंगे? क्या बीजेपी का होगा या क्या कुछ? वो तो हम तो तय नहीं कर सकते। मैं तो आपको सूचना देने के लिए आए हैं। सर नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है? नाम को लेकर के चर्चा नहीं, चुनाव का पूरा प्रक्रिया के लिए और हमारा उम्मीदवार कौन होगा, सारा जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और साथ में सदन के नेता राज्यसभा में नड्डा जी को अधिकृत किया है, ऑथोराइज किया है कि जैसे वो निर्णय करेंगे पूरा एनडीए सर्वसम्मति से उसको सहमति देंगे और पालन करेंगे। Sir, one quick question, because opposition is speaking about SIR debate and you have categorically said no to such a debate. Rahul Gandhi, has also spoken at record and said that we have proof that there was some bungling in the voters list and they are giving proof from one constituency of Bengaluru. So what do you have to say on that? Because every opposition political party is gaining strength from that perspective. So how will you counter that? First of all, special intensive review of the electoral roll had happened numerous times. You know the dates, time, year. It has been carried out throughout since independence. Secondly, in Maharashtra, same electoral roll, when Congress party and its ally won majority of the seats in Lok Sabha, they were praising, they were happy, and then when they lost badly in Vidhan Sabha, then it has become problem for them. In a similar way, whether it's Karnataka or anywhere, the claims made by Sri Rahul Gandhi and his team are completely bogus. They are targeting the Election Commission of India only to tarnish the image of the Election Commission of India. Yesterday they targeted Supreme Court of India. The Congress party leadership said that Supreme Court cannot decide who should be the genuine Indian, how an Indian should speak. If Supreme Court cannot regulate the behavior of the citizens, then who can regulate? So yesterday they launched an attack on the judiciary. Today they again launched an attack on Election Commission of India. Every time, whenever it doesn't suit them, they start attacking the same institution. So my request is, let the parliament function. Don't divert the attention of the House. I have given my point in a statement made in the floor of Lok Sabha that anything which is sub judice, any matter which is beyond the control of the government of India, the people who are sitting in high constitutional office which are not under the control of the government of India, matter related to them cannot be discussed on the House because they cannot come and defend themselves, and government cannot defend on behalf of them because they are not carrying forward those exercises on the advice of the government. It is the independent exercise initiated by the Election Commission of India. So government cannot speak on behalf of the independent constitutional authorities. So the discussion cannot happen on the floor of the House. We are very clear about it because we don't want to undermine any of the constitutional authorities. अच्छा ठीक, मैं फिर से आपको कह देता हूँ, आज श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। कल कांग्रेस पार्टी ने
सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया और सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय कैसे बोलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं, तो फिर क्या चीज को मानते हैं? आज जो राहुल गांधी ने कर्नाटका का एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा करके जो बात रखा है, वो कर्नाटका के जो नेता है, वहाँ के जितना भी सीनियर लीडर है, सबका कहना है कि इतना बकवास बातें आज तक किसी सीनियर लीडर ने प्रेस में बात नहीं किया है। कोई तथ्य नहीं, कहाँ से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है, लेकिन मैं इस छोटे छोटे हर मुद्दे पे अभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनको बार बार अटैक करना, प्रहार करना ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अटैक करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जुडिशरी को अटैक करता है, तो आप सीधा सीधा लोकतंत्र को ही हमला कर रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी और विपक्ष को कहना चाहता हूं कि कोई स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का नाम लेकर के पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके गुमराह करने का कोशिश ना करें। पार्लियामेंट में वही मुद्दा चर्चा में ला सकता है जो नियम परमिट करता है। हमने बार बार कहा है कि डिस्कशन करने के लिए, डिबेट एंड डिस्कशन पार्लियामेंट में हम खुले मन से हमेशा तैयार है, लेकिन ऐसा चीज को लेकर के डिस्कशन करना चाहता है जो ना रूल परमिट करता है, ना पुराना हमारा व्यवस्था में इसका कोई हम उदाहरण दे सकता है। मैंने रूल्स भी कल पढ़ के बताया कि क्यों एसआईआर को हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को अगर हम यहां में घसीट के लेके आएंगे तो चुनाव